یہ فاصلہ درست ہے جہاں پہ میں بات کر رہی ہوں، جہاں سے فاصلہ درست ہے، مجھے آنسر کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی باجی، اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم باجی جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد حی علی الصلاۃ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین، حی علی الفلاح، آیت نمبر 21 شروع کرنے لگے ہیں، سورہ نور 18واں پارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، یا اہل ایمان، لا تتبعوا، نہ تم اتباع کرو، قدموں پہ چلو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ مطلب کیا ہے؟ پچھلی جو آیات تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ جی کو بے حیائی پسند نہیں۔ سورہ نور شروع ہی اس بات سے ہوئی ہے کہ کوئی اگر زنا کرے یا زنا کی بات کو پھیلائے تو اس کو کوڑے مارو۔ یہاں اللہ جی نے کہہ دیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ فحش جو اگلی آیت میں ساتھ ہی اسی کا حصہ جو ہے اللہ جی بتاتے ہیں ومن یتبع خطوات شیطان، اور جو کوئی اتباع کرے گا، شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کے قدموں پہ قدم رکھ کر چلے گا، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ تو یَأْمُرُ کو، یَأْمُرُ حکم دے گا، بالفحشاء برائی کا، والمنکر اور بے حیائی اور برائی، منکر برائی اور فحشاء فحش سے اردو لفظ ہے بے حیائی کا۔ پہلے کہا شیطان کے قدموں پہ مت چلو، اور اگر آپ شیطان کے قدموں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں بڑی؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ باجی جان آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سمینا آ رہی ہے۔ اور باقی لوگ ذرا بتائیں سب کو آواز آ رہی ہے؟ شروع کر دیا، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی، اسی لیے سب آج ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ باجی ساتھ والی کو بھی آیا، ان کا بھی نہیں آ رہا، دو چار لوگ اور کہہ رہے نہیں آ رہا، کچھ اس کا میں مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آپ سب کو آ رہی ہے جو آن لائن ہے؟ بیٹھن کی تو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ میں نے مائک ہے، آپ چیک کریں کیا سب آواز آ رہی ہے؟ جس کو نہیں آ رہی وہ سمینا کو بھی کی آیت نمبر 21 ہے، 20 آیات ہم کر چکے ہیں اور یہ جان چکے ہیں کہ اللہ جی کہتے ہیں کہ زنا مت کرو، اگر تم نہ کرو گے تو تھوڑا سا مائک کو تھوڑا سا دور کر لیں، آواز بالکل صحیح ہے۔ جی صحیح ہے، چلو یہاں ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ شروع کریں۔ ہاں جی، یا دوبارہ سے شروع کرنے لگی ہوں آیت نمبر 21 سے۔ یا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، سارے اردو لفظ ہے، نہ اتباع کرو شیطان کے قدموں کا،
ومن اور جو کوئی یتبع خطوات شیطانی جو کوئی اتباع کرے گا شیطان کی پیروی کرے گا فإنہ تو بے شک وہ یامر حکم دے گا بالفحشاء بے حیائی کا اور برائی کا منکر بے حیائی کا بھی اور برائی کا بھی یعنی اللہ جی کہہ رہے ہیں بے حیائی کے جو کام ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور برائی کے سارے کام جو ہے ان کی طرف بھی راغب کرنے والا شیطان ہے اس لیے ان سے بچو ولولا فضل اللہ یہ آیت دوبارہ تیسری دفعہ آ رہی ہے شاید اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا ورحمتہ اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی ما زکا منکم تو تم میں سے پاک نہ ہو پاتا من احد کوئی ایک بھی ابداً کبھی بھی یعنی اللہ جی برائیوں کو دور کرنے کے راستے ہمیں بتا رہے ہیں پوری سورہ نور میں ہمیں بار بار معاشرتی آداب اور اصول بتائے جانے ہیں پینسل ہاتھ میں رکھیے اور جو جو اصول آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ لیکن اللہ تو پاکیزہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ يُزَكِّي پاک کرتا ہے مَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ یقیناً اللہ سمیع علیم سب کو آتا ہوگا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے وہ ہر چیز سے خبر بھی ہے باعلم بھی ہے ولا یا تلی نہ تم قسم کھا لو اولو الفضل کون سے وہ جو فضل والے ہیں من کو تم میں سے والسعاتی اور جو وسعت والے ہیں ان یوتو یہ کہ وہ دے اولی القربا اس طرف قرابت داروں کو والمساکین اور مساکین کو والمہاجرین اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جو پیچھے واقعہ اس وقت گزرا ہے جو بی بی عائشہ پر تہمت لگی تھی اس کی ڈیٹیل میں نے لاسٹ میں لیکچر میں ڈیلیور کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بہت رنج اور بہت دکھ تھا کہ مدینہ کے اندر وبا کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ بی بی عائشہ نعوذ باللہ پاکیزہ نہیں رہی تو آپ بالکل خاموش ہو گئے اب یہاں یہ بات کیوں اللہ جی نے کہی اس لیے کہی کہ کزن بردر تھا حضرت ابو بکر صدیق کا مستح بن اساسہ غریب آدمی اچھا مسلمان اور حضرت ابو بکر صدیق ان کی بہت مدد کیا کرتے تھے ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے بدقسمتی سے یہ بندہ بھی اس افواہ کو پھیلانے کا موجب بنا جو کہ انتہائی نامناسب سی واقعہ عبرت کی کہ یہ بھی پیش رہا اور حضرت عائشہ پر تہمت لگانے تو حضرت عائشہ تو ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی ان کو بہت دکھ ہوا کہ اس نے نہ تو خاندان کا لحاظ رکھا ہے نہ میری عنایات کو پیش نظر رکھا ہے اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگانے میں آگے ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اس نے جو حرکتیں کی ہیں اب آئندہ میں کبھی اس کی کوئی مدد نہ کر پاؤں گا جب یہ قسم کھا لی تو اس کے بعد اللہ جی نے یہ آیات نازل کی کہ تم میں سے کوئی شخص یہ قسم نہ کھائے کہ جو فضل والا ہے جس پر اللہ کا فضل ہے کشادگی ہے وسعت والا ہے اللہ نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا ہوا ہے تو اس کے لیے خاص طور پہ ابو بکر صدیق
का जो रुतबा है सिद्दीकीन का, तो उनके लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो, और उन्होंने फौरी तौर पर कसम का कफारा अदा करने के बाद दोबारा से वस्ता बिन सासा की इमदाद शुरू कर दी और फिर उनकी जिंदगी तक ये जारी और सारी रही। इन्नल्लाज़ीना, बेशक वो लोग, यरमूना नल मुहसनाती, तोहमत लगाए, मोहसन होता है पाकबाज, राफिलात बोली बाली, मोमिनात पर, बस वो लोग जो तोहमत लगाते हैं पाकबाज बोली बाली मोमिन औरतों पर, लो लानत है उन पर, फिर दुनिया, इस दुनिया में भी, वल आखिराती, और अज़ाब अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। ये आए हमारे मुआशरे में सेटिस्फाई होता है। आप जब बोलते हैं तो मैं डिस्टर्ब होती हूँ, आप सेटिस्फाई हो जाए। अब 15 मिनट गुजर गए जी। ये इसको बार बार घरों में पढ़ना चाहिए कि वो लोग जो तोहमत लगाते हैं नेक बीबियों पे, मुहसनात, गाफिलात, जिनको पता ही नहीं है, बोली वाली है, मोमिन है, ईमान वाली है, बेखबर, उनको इस बात का पता ही नहीं और उनको पर तोहमत लगा दी है किसी ने, लानत है उन पर, फिर दुनिया, इस दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में भी, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अज़ाब होगा। जो गाफिलात का लफ्ज़ है ना, सीधी सादी बोली वाली मासूम औरतों के लिए, और जो इस बदचलनी की रवश को बिल्कुल पहचानती भी नहीं है, अपने घरों में मौजूद है, उनको भी तोहमत लगा के बदनाम करने वालों को दुनिया में भी लानत फेस करना होगी और आखिरत में तो बड़ा अज़ाब होगा। और उस दिन होगा क्या? यौमा, उस रोज, तशहदु, शहादत देंगे, अलैहिम, उन पर, और अलसिनतु, उनकी ज़बानें, व ऐदी, उनके हाथ, अर्जुलुहुम, और उनके पाँव, बिमा कानू यामलून, उसके खिलाफ जो वो अमल करते रहे। याद क्या रखना है कि यहाँ ये हाथ, ये पाँव, ये ज़बान आपकी मलकियत है, आपके हुक्म के ताबे है, आप जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन ये अल्लाह की अमानत है। जब वो अल्लाह के पास हम चले जाएंगे तो यही हाथ हमारे नहीं रहेंगे, यही ज़बान और यही पाँव ये हमारे नहीं होंगे, ये अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाएंगे। और हमने जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ, जो जराइम किए होंगे, उन पर अल्लाह पाक को ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे। ये वो दिन है अल्लाह पूरा पूरा हकीकत बता देगा, मुकम्मल। आप जैसे पढ़ते हैं ना, खून का यहाँ पे बदले के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जैसे कहते हैं बदले का, आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, यअलमूना अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, और जान लो कि अल्लाह ही हक खोल खोल कर बयान करने वाला है। आयत नंबर 26
29 पे आ जाइए, अल खबीसात लिलखबीसीन, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए है, वल खबीसून और नापाक मर्द लिलखबीसात नापाक औरतों के लिए है, वत्तय्यिबात और पाकीज़ा औरतें लित्तय्यिबीना पाकबाज मर्दों के लिए है, वत्तय्यिबून और पाक मर्द लित्तय्यिबात पाकबाज औरतों के लिए है, उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून, वो मुबर्रा है, वो बरी है, वो लोग जो पाकबाज हैं इन सब बातों से जो ये लोग कहते हैं, यानी तोहमतों से। अगर किसी ने तोहमत लगा दी है तो वो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, वो बरी कर दिए जाएंगे, लेकिन अजाब की वईद दी है तोहमत लगाने वालों पर। उनके लिए मग़फ़िरत भी है, बख्शिश है, वरिज़्क़ुन करीम और इज्जत वाला रिज़्क़ भी अल्लाह के यहाँ मौजूद है। आगे चलते हैं। आगे हमें माशरती असूल कुछ सिखाए गए हैं कि घरों में आपने कैसे रहना है, घर की चार दीवारी का तकद्दुस कैसे बरकरार रखना है, प्राइवेसी का ख्याल रखना है, समय का इंतजाम कैसे करना है, घर से पर्दे के क्या अहकामात है और घर से बसर के बारे में क्या करना है, मखलूक महाफिल को कैसे डील करना है। 27 से लेके 34 तक ये आयात है जो अल्लाह जी हमें सिखाना चाह रहे हैं। ऐसा है कि ईमान लोगो ला तदखुलू बुयूतन गैर के घर में दाखिल मत हो। अपने घरों के अलावा हत्ता जब तक उनकी रजामंदी ना दे दो, व तुसल्लिमू और सलाम कर लो अला अहलिहा इस घर के रहने वालों को। बाकायदा आपको तरीका सिखा दिया गया कि किसी के घर गैर घर, अपना घर और उसके बाद सारे घर गैर घर, कि अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर में उस वक्त तक आपको दाखिल नहीं होना जब तक उसकी रजामंदी ना ले लो। और तरीका ये होगा कि आप गेट पे जाके जोर से अस्सलाम वालेकुम कहेंगे और उनसे कहेंगे क्या आप हमसे इस वक्त मुलाकात कर सकते हैं, अगर आपने वक्त नहीं लिया तो। और अगर वक्त लिया तब भी आप दरवाजे पे जाकर अस्सलाम वालेकुम बुलंद आवाज से कहेंगे, बेधड़क एकदम घर के अंदर दाखिल नहीं हो जाएंगे। और ना ही इस बात की इजाजत दी गई है कि किसी सुराख में से अंदर घर के झांका जाए। ज़ालिकुम खैर, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। का माइक ऑन है, प्लीज अपने अपने माइक बंद कर दें, आवाजें दूसरी डिस्टर्ब हो रही हैं तो बाजी की आवाज अपने आवाज बंद कर दें, म्यूट कर दें अपने अपने माइक प्लीज। आवाज ठीक नहीं आ रही, जितना मर्जी कर समीना आवाज ठीक नहीं आ रही। बाकी आपकी आवाज सही आ रही है, बट जब दूसरों के बीच में आवाज आती है जिनके माइक ओपन है तो फिर आवाज डिस्टर्ब होती है। आपकी आवाज सही आ रही है। चलिए ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। आयत नंबर 28 पे देखिए, किसी एक की गलती की वजह से
सब सफर कर रहे हैं, बराए मेहरबानी रूल्स का ख्याल रखें तो सबके लिए फायदा। अब पहले क्या किया ना कि घर में दाखिल कैसे होना है कि आपको अव्वल को टाइम लेके जाना है, और अगर टाइम नहीं भी लिया हुआ तो ये नहीं करना कि बेगर जाके घर के अंदर दाखिल हो जाओ कि जबरदस्ती में टाइम दो। आपने करना ये है कि घर के दरवाजे पे खड़े होके उनसे उनकी रजामंदी मालूम करनी है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, और अगर वो चाहे तो अंदर जाए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो उस वक्त आपको नहीं मिल सकते तो इसका बुरा मत बनाए। फिर अगर तुम ना फिर अगर लम्मा तजेदू तुम पाओ फीहा इसमें अहदन कोई भी बंदा बसना इसमें भी जाहिर यहाँ तक के तुमको इजाजत ना दी जाए। खाली है, घर का मालिक घर में मौजूद नहीं है और कोई भी नहीं है, तो जब तक घर के मालिक की इजाजत नहीं होगी हम उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। याद रखें ये बातें तो बहुत सारी कबाहतों से हम बच जाएंगे। खाली घर के अंदर मालिक की इजाजत के बगैर दाखिल होना मना है। और अगर तुमसे ये कहा जाए तो मुर्जिऊ लौट जाओ, वापस चले जाओ, और जो तो वापस आ जाओ, इसका लाखो यही तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है। जो भी तुम इल्म करते हो उससे अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि घर वाले ने अंदर से कह दिया कि इस वक्त मैं नहीं मिल सकता, मैं कहीं मसरूफ हूँ, तो आप बाहर से ये वाले ले लगाओ या किसी और को जाके को बड़ा गुरूर का मर रहा है, उन्हें तो घर मिलना ही पसंद नहीं किया। अब जबकि आप वक्त लेके नहीं गए, और जब अगर आप वक्त लेके गए हैं तो ये फिर किसी हद तक, लेकिन बात करके बार अल्लाह की ये कह रहे और जो हमें असूल बता रहे हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। नैसा अलैकुम नहीं है तुम पर कोई जुनाह गुनाह अगर तदखुलू तुम दाखिल हो बयूतन एक ऐसे घर में गैर मस्कूनती जिसमें सकूनत नहीं है, जिसमें कोई रह नहीं रहा, पूरा घर खाली है और उसमें कोई रिहाइश मौजूद नहीं है। फीहा मतान लकुम और उसमें तुम्हारी कोई चीजें पड़ी हुई हैं, तो वल्लाहु नहीं, इसको यहाँ पहले पूरा कर लेती है। उसको लेने के लिए आप अपने उस घर के मालिक की इजाजत के बगैर भी जा सकते हैं, जो कि गैर रिहायशी घर है। तुम्हारी कोई चीजें उसमें पड़ी थी, उसमें सकूनत नहीं है, तो उसमें आपको मालिक से इजाजत देने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पर कोई गोदाम है, उसमें आपने कुछ चीजें रख दी है, कोई स्टोर है, उसमें आपने कोई चीजें रख दी है, तो वो मालिक की इजाजत के बगैर भी आप जाके अपनी इख्तिताम दे सकते हो। जानता है मातुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, तब तुम होना और जो भी बात तुम छुपाते हो, अल्लाह जी को सब पता होता है। अगला हुक्म देखिए, पहली बात हमने बताई कि घरों की प्राइवेसी का कैसे ख्याल रखना है और कौन से घर में जाना है इजाजत से, कौन से घर में आप बगैर इजाजत अंदर दाखिल हो सकते हो। एक घर जिसमें कोई रहता नहीं है और मिसाल के तौर पे गोदाम है, माल पड़ा हुआ है, मसाल पड़ी हुई है, चीजें पड़ी हुई है, उसमें आप मालिक
इजाजत के बगैर भी जाके अपनी चीजें ले सकते हो। लेकिन आप एक गौर कीजिए, खानदानी तकद्दुस का, उसकी प्राइवेसी का कुरान ने कितना ख्याल रखा हुआ है। अल्लाह जी ने कुल कह दीजिए मोमिनीन के लिए, यानी मोमिनीन से कहिए अपनी निगाहें नीचे रखे, मिन अबसारिहिम, वो अपनी निगाहों को, ये मर्द और औरत दोनों के लिए हुक्म है कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, और हिफाजत करें फुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की, दारुका, ये आस्था पाकीज़ा है, लहुम, उनके लिए, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, खबीरुम बिमा यस्नाऊन, ये जो कुछ बातें बनाते हैं इसमें इनसे अल्लाह पाक पूरी तरह बाखबर है। यानी निगाहों को नीचा रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए, इसमें ही पाकीज़गी है। और जो उलट पुलट बातें इसके अलावा लोग करते हैं तो अल्लाह को सब पता है कि जो झूठ है और जो सच। और बकुल, और कह दीजिए किससे, मोमिन औरतों से, या वो भी नीची रखे, अब सारे हिलना अपनी बसारत को, और हिफाजत करे फरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की। लेकिन एक बात देखें, अगली जो चीज है, वला युबदीना, ना खोले, ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाओ श्रृंगार और सजावट की चीजों को, इल्ला, हाँ मगर, मा ज़हर मिन्हा, जो खुद जाहिर हो जाए। मिसाल के तौर पे आप सच को तो नहीं छुपा सकते ना, आप मोटापे को तो नहीं छुपा सकते, तो ये खुद ब खुद जाहिर होने वाली चीज। जीनत क्या है, पाँव में गाजर पहनी हुई है, या हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है, या और कोई झुमका लटका के दिखा रहा है, तो ये चीजें मना है। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाओ श्रृंगार का इजहार न करे सवाए उसके जो खुद जाहिर हो रहा है। अगर एक दराज का औरत है तो आप उसको छोटा करके तो नहीं दिखा सकते। इसी तरह अगर आप पर्स का औरत है तो उसको लंबा करके नहीं दिखा सकते। अगला हुक्म देखिए, या जो लेना, लपेट ले, डाल ले, अपने ओढ़निया, अपने दुपट्टे, अला ऊपर, जो युबिहिन्ना, जो युग पर, जो युग क्या होता है, ये लफ्ज़ आप सूरह अल-अहज़ाब में भी पढ़ेंगे, जलाबीब, यानी ये हिस्सा है सर से लेकर गर्दन और सीना। और कुछ उलमा इसके लिए कहते हैं कि कमर तक का पूरा हिस्सा, यानी अपना मामूल का लिबास वो पहने हुए है, तो उसके ऊपर वो क्या ले ले, बड़ी ओढ़निया, और उनसे गला, सीना और कमर तक सबको ढांकना है। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल बाज बच्चियां के सर से ढक लिया तो सीना पूरा नंगा रहे, ये मना है। ये औरत जो अरब की रवायत है उनके मुताबिक दुपट्टा या चादर एक औरत पहले ही से करती थी, यानी घर में सर ढांकना पहले से अरब की रवायात में मौजूद था, लेकिन सीना नहीं ढांकती थी, सीना खुला रखती थी। तो यहाँ अल्लाह जी ने कहा, पंजाबी में
पुत्रवा